what you have learned. Have you gone through this? Please message all of you. I will understand. Don't unmute and ask. Please message. Have you gone through? Ravi, Snehal, Santanu, Priyanshu. Priyanshu, yes, okay. Snehal, yes. What about Ravi and Aradhana? Ravi, yes, very good. What about Aradhana? Aradhana has left. There is some issue, I think, at Aradhana's place. No, कोई बात नहीं. So Aradhana, have you gone through these? What you have learned? आपने पढ़ा है इसको? Please type in chat box. सर उसने तो कर दिया टाइप. Okay, कर दिया. Okay, good. Okay, okay then. So we will start now our exercise. See, so exercise. I think till 10 you have completed. Till 9 or 10 you have completed. So let me go one by one because I want to discuss this also. Let me go one by one. So first question here is a piece of wire of resistance R is cut into five equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of the combination is R dash, then the ratio of R upon R dash is. Who will answer? Please raise your hand. Please raise your hand. Who will answer? Snehal will answer. Okay. And what about Ravi, Priyanshu, Aradhana will answer. Okay. What about Ravi and Priyanshu? Ravi, have you gone through this question? No, sir. So you have told me you have gone through till question number 10. Sir, I have problem. Okay, okay, okay. So what about Priyanshu? Can you answer this question? Okay, Priyanshu have problem. Okay. What about Ravi? Yes, Ravi. Ravi, I am waiting for your answer. सर नहीं हुआ था. Okay. So you please type in chat box. ये सर नहीं हुआ जैसे कि रवि जैसे कि प्रियांशु ने लिखा ना आई हैव प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन इस वजह से हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा ना मैं बार बार पूछता हूँ दो बार पूछता हूँ फिर आप बोलते हो तो टाइम किलो होता है ना तो टाइम इज प्रीसियस ओके स्नेहल गो आई विल गो विद स्नेहल ओके स्नेहल यू गो अहेड Sir, the resistance is cut into 5 equal parts, which means the resistance of each part is R upon 5. We know वेरी that गुड each part is connected to each other in parallel, so equivalent resistance can be calculated. 1 upon R dash equals to 5 by R plus 5 by R plus 5 by R up to 5 times equals to ओके we have added equals to 25 by R, and R upon R dash equals to 25, so the ratio of R upon R dash is 25. वेरी गुड वेरी गुड सो रेशियो ऑफ आर अपॉन आर डैश इज 25 इसको मैं फिर से बोलता हूँ सब लोग को ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए देखिए ध्यान सुनिएगा A piece of wire of resistance R is cut into five equal parts. आपको पता है कि यदि लेंथ इसका आधा होगा तो रेजिस्टेंस भी आधा होगा 5 पार्ट कर दिया इसको तो लेंथ उसका 1/5 हो गया तो रेजिस्टेंस भी उसका 1/5 हो जाएगा तो जो इच पार्ट है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/5 टिल दिस पॉइंट इज इट क्लियर प्लीज कमेंट ऑल ऑफ यू आप लोग बहुत लेट करते हो आंसर करने में यस आंसू रवि ओके स्नेहल यस यू हैव क्लियर यू आर व्हाट अबाउट दिस Santanu Yes, sir. तो आप टैप करके Sir, बोल yeah. सकते हो शांतनु डोंट वेट कि मैं आपसे Sir, अलग yeah. अलग से Keyboard, sir. ओके ओके कोई बात नहीं तो आप कीबोर्ड काम नहीं कर रहा तो आप अनम्यूट Keyboard, करके sir. बोल सकते हो जैसे अभी आपने बोला है ठीक है यहाँ तक क्लियर है
अब आप लोग पेपर और पेन निकालिए, सब लोग पेपर और पेन निकालिए और Yes, फॉर्मूला sir. लिखिए 1/r p, यानी 1 बाय रेजिस्टेंस हम निकालते हैं पैरेलल में, आपने पढ़ा है फॉर्मूला 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। ये लिखा आपने। अब यहाँ पे क्या है, R1 R2 R3 R4 R5 सारे हमारे R/5 के इक्वल है, क्योंकि आपने R को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू R5 इक्वल टू R/5। टिल दिस पॉइंट इज इट क्लियर शांतनु? Yes, sir. Yes, sir. ओके शांतनु। सो अब आप क्या करेंगे, 1/rp इज इक्वल टू आप सारे R1 R2 R3 R4 का वैल्यू पुट करेंगे। चूंकि 1/rp इक्वल टू 1/r1 है, R1 का वैल्यू R/5 है, तो 1/r/5 हुआ तो ये 5 ऊपर जाएगा और R नीचे रहेगा, तो ये 5/r हो गया। 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r 5 बार। और जब इसको ऐड करेंगे R एलसीएम आएगा और ऊपर में 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 5 बार रहेगा। ऊपर में 25 हो गया और नीचे में R हो गया। ये आपको वैल्यू है 1/rp का। 1/rp R 25/r है, तो rp क्या हो जाएगा, R/25 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ अंतनु? No, sir. No, sir. अंतनु आप फिर से लिखिए कॉपी पे 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। और यहाँ पे सारे R1 R2 R3 R4 R5 का जो वैल्यू है वो R/5 है, तो सबके जगह आपको R/5 पुट करना है। तो 1/r/5 लिखेंगे आप, तो 5 आपका ऊपर चला जाएगा, R नीचे रह जाएगा। यस शांतनु? Yes, sir. और ये 5 बार होगा, तो 5 बार को आप जोड़ोगे तो R एलसीएम आएगा और ऊपर हो जाएगा आपका, ऊपर में R आपका एलसीएम आ गया और ऊपर में आपका हो गया 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 5 बार। Yes, sir. यस Yes, कितना sir. हुआ ये टोटल कितना हो गया? Total, sir. 1/r plus 5 plus 5 plus 5. इसे 5 बार हो गया। तो सबको आप सम करो, एलसीएम लो और सम करो, पूरा बताओ मुझे कितना हुआ। सर एलसीएम आर आ रहा है। हाँ R एलसीएम आएगा आपके, तो ऊपर में कितना हो गया, 5 प्लस 5 प्लस 5 5 बार, यस सर। 25 बार हुआ ना। यस सर। ये 1/rp का वैल्यू 25/r है, तो rp कितना होगा? सर 25/r हो गया सर, और उसके बाद जो है ये वैल्यू जो है 25/r जो वैल्यू है ये 1/rp का वैल्यू है, तो rp क्या होगा? यस शांतनु, rp कितना होगा? यस सर आरपी। rp उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1/rp है 25/r, rp हो जाएगा R/25, उल्टा हो जाएगा। यस शांतनु? सर ये यस सर, ये आरपी का वैल्यू है सर, R/25। हाँ R/25 हो गया rp का वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इसी rp को इसने कहा है, ये हम r डैश है। इफ द, यहाँ क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज r डैश देन द रेशियो ऑफ R/r डैश। इसी rp को यहाँ पे r डैश बोला है, ठीक है। अब आप रेशियो निकाल लीजिए R/r डैश का। r हमारा तो r ही है, r डैश हमारा कितना है, r डैश हमारा कितना आया, R/25, r बटे r बटे 25 करेंगे तो r कट जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा, तो रेशियो हो गया हमारा 25। यस शांतनु? सर रेशियो 25 आ गया। आ गया ना? यस सर। व्हाट अबाउट रवि एंड प्रियांशु?
Yes, sir. Priyanshu? Yes. What about Aradhana? Yes, sir. Okay, very good. So I'm moving to the next question. Question number two. Which of the following terms does not represent electric power in circuit? इलेक्ट्रिक पावर सर्किट में फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आई स्क्वायर आर होता है, वी इंटू आई भी होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, बट कहीं पे आई आर स्क्वायर कोई फॉर्मूला तो था नहीं। यस शांतनु? है। यस सर। ये तो सबको बन गया होगा, आई थिंक इसका आंसर बी होगा। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए। थ्री है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वॉट। इस पे वोल्ट कितना अप्लाई कर रहा है? 220 वोल्ट, मतलब कि सोर्स जो हम यूज कर रहे हैं वो 220 वोल्ट का है और उसका पावर लिखा हुआ है 100 वॉट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट ऑन 110 वोल्ट, जब उस बल्ब को हम लोग, जब उसकी वोल्टेज कम होता है हमारे घर में, कभी कभी, आजकल तो नहीं होता है, पहले के समय होता था, वोल्टेज कम है तो 110 वोल्ट है, देन पावर कंज्यूम्ड विल बी, यदि वोल्टेज 110 है तो पावर कितना कंज्यूम होगा? Who सर will ये answer this वी question please? स्क्वायर अपन आर से बन जाएगा। पी स्क्वायर आर से बन जाएगा, नो इशू। तो anybody else who try to answer this question? Ravi and Priyanshu? Sir, me. Okay, Aradhana, go ahead. Yes, Aradhana, I'm waiting for your answer. Okay, Priyanshu, can you answer this question? आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो या मैसेज भी कर सकते हो। Am I audible? रवि? Yes, sir. रवि और प्रियांशु क्यों नहीं बोल रहे हो तुम दोनों? यस सर। क्या प्रियांशु कहाँ चले गए थे, सो गए थे क्या? ओके प्रियांशु, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 3? सर आंसर इज 25 वॉट। नो, आई डोंट वांट आंसर, आई वांट एक्सप्लेनेशन कि कैसे बनाएंगे इसको। ओके नहीं you just tell me the steps. सर कोई बात फर्स्ट नहीं भी रवि, मैं समझ गया, ठीक है बताइए। सर इसमें लिखेंगे एज द बल्ब इज रेटेड ऑफ 220 वोल्ट 100 वॉट हेंच इट इज resistance is given as R equal to V square by P. Okay, very good. And then R equal to 220 multiplied 220 by 100 100. Yes. Then 220 square equal to 484 48400 by Just 100. hold on, Priyanshu. Just hold on. Yes, sir. No need to multiply 220 and 220. No need to do this calculation because uh, in denominator you have 100. So just Yes, just sir. cut two zeros. Okay, 220 का एक Yes, sir. जीरो, 220 का एक जीरो और दूसरे 220 का एक जीरो आप 100 से कट कर दो तो यू विल गेट 22 into 22. Yes, sir. Equal to 484 ohms. 4. Okay, very good. Okay, Priyanshu, I got your answer. So you have got the resistance and Yes, sir. now voltage is 110. So Yes, sir. power is V square By R. by R. So Yes, sir. V is 110 or R you have got already. Okay, very good. Yes, Santanu, is this question clear to you?
Yes, sir. Very good. What about Sant and Sania? Yes, sir. आप लोग इतना लेट क्यों आ गए? सर नेट प्रॉब्लम था। थोड़ा पहले से मैंने कहा था ना कि आप 7 बजे ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पे इंटरनेट प्रॉपरली आए, और या आपके फोन में नहीं आ रहा है तो किसी और का फोन लेके, ताकि आपका क्लास मिस ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन बताएंगे आंसर? प्लीज रेज योर हैंड। सर नहीं बना। ओके, एनीबडी जो जिससे बन किसी से बना है क्वेश्चन नंबर 4? सर ये 4 का शांतनु से नहीं बना, क्वेश्चन। स्नेहल से नहीं बना, मैं समझ गया। शांतनु ठीक है। नो, रवि भी कह रहा है नो। व्हाट अबाउट प्रियांशु एंड संत? प्रियांशु भी नो, संत? नो सर। आराधना भी नो। आराधना को बना है, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आराधना प्लीज गो अहेड विद द एक्सप्लेनेशन। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तब तक। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, बट पता नहीं है कि पता नहीं सही है कि नहीं। अरे, ये मैंने पहले भी कहा था तुमको कि ये चीज नहीं सोचना है कि मैंने बनाया तो सही है कि नहीं। आप, मैंने बनाया, ट्राई किया, तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो कि सर मैंने इस प्रोसेस से बनाया, उसके लिए मैं हूं ना बताने के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, ओके, मैं बताता हूँ फिर। ओके, यू जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 4। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ same material and equal length and equal diameter are first connected in series, then parallel in a circuit across the same potential difference. What is the ratio of heat produced in series and parallel combination? What is the the ratio of heat produced in series and parallel combination would be? अब देखिए यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि टू कनेक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर are connected in series and parallel in a circuit across the same potential। सब कुछ सेम ही है यहाँ पर। यहाँ तक जो फर्स्ट सेंटेंस है इस क्वेश्चन का, जो लंबा सेंटेंस है, 2 से अधिक लाइन का है, ये फर्स्ट सेंटेंस में किसी को कोई दिक्कत है? आप एक बार बोलिए। दिक्कत है तो आप यस बोलिए, नहीं है तो आप नो टाइप नो कीजिए। सर। यस, आपको नहीं है। किसी को है इसमें जहाँ तक में दिक्कत? किसी का नो। किसी का दिक्कत यहाँ पे? नो सर। ओके, चलिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। अब देखिए, कह रहा है द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमने हीट पढ़ा है, क्या होता है? हमने हीट पढ़ा है कि I² RT होता है। ठीक है, हीट हमारा क्या होता है? I² RT। और यदि उसको हम लोग इसके टर्म में बोलेंगे, V के टर्म में बोलेंगे, तो क्या होगा हमारा? V × I × T। यहाँ तक याद है आप लोग को? V × I यस × T सर। होता है। ओके, वेरी गुड। तो भी तो यहाँ पे कॉमन है, और ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में इक्वल टाइम के लिए ही बात करेगा, तो टी भी कॉमन होगा। तो भी कॉमन है, टी कॉमन है, तो दोनों का जो हीट का रेशियो होगा वो डिपेंड कर रहा है दोनों के रेजिस्टेंस पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस संत, ये क्लियर हुआ? यस क्लियर सर। है, वेरी गुड। व्हाट यस ओके, सर। वेरी गुड। क्योंकि व्हाट अबाउट शांतनु? यस सर। ओके, वेरी गुड। मतलब क्या हुआ? हीट उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, चलिए। अब क्या है कि दो वायर को यदि सर हम उसका सी रेजिस्टेंस। हाँ, जस्ट जस्ट फॉलो मी, मैं बता रहा हूँ आपको। यदि दो वायर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? यदि एक का आर है तो दोनों का मिलकर कितना हो जाएगा? 2R। यहाँ तक सब समझ रहे हैं आप लोग? और दो रेजिस्टेंस है R उसको यदि हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। क्योंकि आप देखिए करके, 1/RP इज इक्वल टू 1/R + 1/R इज इक्वल टू 2/R, तो RP इक्वल टू R/2 हो गया।
दो रेजिस्टेंस को, दोनों का रेजिस्टेंस आर है, उसको सीरीज में करेंगे तो वो 2R होगा। अब पैरेलल में कर देंगे तो वो R/2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. शांतनु, वेरी गुड। Yes, sir. अब बताइए, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल तो होगा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल इज इक्वल टू 2R/R/2। आर आर कैंसिल, 2 चला गया ऊपर तो हो गया 4/1। यस, क्लियर हुआ? Yes, sir. What- यहाँ तक हो गया sir. जिसको जिसको क्लियर हो गया वो आंसर टाइप कर दीजिए। ABCD में से कौन सा आंसर होगा? प्लीज कमेंट इन चैट बॉक्स। स्नेहल बोल रही है सी। सी नहीं होगा बेटे, 4/1 हुआ ना, डी होगा आंसर ना। आराधना डी बोल रही है, गुड, ऑप्शन डी ठीक है। स्नेहल, सी और डी? स्नेहल Sir, प्लीज D. रिस्पॉन्ड। हाँ डी होगा, सी नहीं होगा। सी तो उल्टा हो गया ना, डी होगा। इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना हम लोग। ऑप्शन ऐसा दिया रहता है जनरली, ठीक है, कंफ्यूज करने वाला, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओके, वेरी गुड, आई गॉट ऑल आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ओके, so question number, I am coming to question number 5. Who will answer this question? Please raise your hand. Sant will answer, Snell will answer. Very good, very good. So I am reading the question. How is the voltmeter connected in circuit to measure the potential difference between 2 points? Yes, Sant, you please answer. Sir, Okay, a Aradhana, I will voltmeter ask you again. should be a voltmeter should be connected in parallel to the point. Very good. Okay. And Aradhana, you please tell me how how an ammeter is connected in circuit to record the current. आमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में? What, sir? Repeat now. आमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं? Shantanu, you answer this question. Yes, sir. Sir, आमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं? मीटर को करते हैं. फिर से बोलिए एक बार। Yes, Shantanu, I am waiting for your answer. Sir, I don't know. Sir, मतलब आपने सर्किट नहीं पढ़ा, मैंने आपको रात में बोला था पढ़ने के लिए। फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक मैंने कहा था पढ़ने। yes, sir. हाँ Yes, बोलिए, पढ़ा था आपने टॉपिक को? yes, sir. ओके, who will answer this question? आमीटर को सर्किट में Sir, कैसे can I कनेक्ट करते हैं? try? यस, So, ammeter is connected in series with a device to measure its current. वेरी गुड। आप लोग को याद नहीं है क्या? मैं दिखाऊं आप लोग को, देखिए। आई एम कमिंग टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर्स और ऑफ दिस चैप्टर। सी, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, ये हमारा चैप्टर है और आपने देखा था कि हमारा सर्किट है। फर्स्ट में हमने सर्किट ही पढ़ा था, देखिए यहाँ पे है ना सर्किट। सर्किट में यहाँ पे ये लिखा हुआ है आर्मीटर है, ये किस तरह से कनेक्ट किया हुआ है? सीरीज में है, मतलब इसका एक एंड पहले कनेक्ट है, दूसरा एंड बाद में कनेक्ट है। लेकिन जो वोल्ट मीटर है, देखिए आप आगे वाले फिगर में जो वोल्ट मीटर है वो कैसे कनेक्ट किया गया है? सर्किट डायग्राम देखिए यहाँ पर, फिर से यहाँ देखिए, इस फिगर को देखिए, फिगर 12.2 को देखिए। यहाँ पे आमीटर कनेक्ट है सीरीज में, वोल्ट मीटर कनेक्ट है पैरेलल में। यस शांतनु, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. इसका मतलब आपने पीडीएफ को रीड नहीं किया है। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप पीडीएफ को पढ़ेंगे,
बट पढ़ना तो जरूर है। नहीं पढ़ेंगे, केवल मैं लेक्चर अटेंड करेंगे, आपको समझ में आएगा मेरे क्लास में, क्लास के बाद आप भूल जाएंगे, एग्जाम में तो पूरा भूल जाएंगे। मेरे क्लास से पहले और क्लास के बाद आपको अपने बुक को पढ़ना है, बुक नहीं है तो एटलीस्ट इस पीडीएफ को पढ़ना है, तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से। नहीं तो आपका यही भी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, डेली पढ़ना है, आप 15 मिनट ही पढ़िए, आधा घंटा ही पढ़िए, जितना टाइम आपके पास है उतना ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसको भी, और जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है उसको भी 2 बार पढ़ना है आपको। सपोज कि कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल कल मैं पढ़ाऊंगा आपको, आई एम टेकिंग ऑन एग्जाम्पल कि सपोज कि कल मैं पढ़ाऊंगा आपको फैक्टर ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ये पता है कि कल की सर पढ़ाने वाले हैं, आपको आज इसको पढ़ लेना है, और फिर कल क्या करेंगे आप, जब इसको मैंने पढ़ा दिया दोबारा आप पढ़ेंगे इसको। 2 बार पढ़ना है, आप ध्यान रखिए। इफ यू वांट बेटर रिजल्ट, इफ यू वांट बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको 2 बार पढ़ना है, मेरे पढ़ाने से पहले भी और मेरे पढ़ाने के बाद भी। उसके बाद आपको कोई दिक्कत होता है तो आप फिर नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछेंगे, सर यहाँ पे कोई दिक्कत है मुझे बता दीजिए। मतलब हर दिन आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, एक टॉपिक वो जो मैंने कल पढ़ाया था और एक टॉपिक वो जो मैं कल पढ़ाऊंगा। इस तरह से आपको हर दिन 2 टॉपिक बुक से पढ़ना है या पीडीएफ से पढ़ना है। ठीक है, तभी आपको समझ पाएंगे। यस, एम आई क्लियर? ओके, वेरी गुड शांतनु। व्हाट अबाउट अदर, क्या बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे? आराधना भी पढ़ेगी, प्रियांशु भी पढ़े, वेरी गुड। व्हाट अबाउट रवि, स्नेहल, संत, सानिया? वेरी गुड रवि, स्नेहल, वेरी गुड। व्हाट अबाउट संत? ओके, so now we are moving to question number 6. A copper wire has a diameter 0.5 mm, resistivity. First of all, tell me who will answer this question. Please raise your hand. सर आंसर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको। किसी को अपना ये क्वेश्चन जिसका आंसर आ गया है? स्क्रीन शो ही नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो क्या आप लोग को हो रहा है? यस सर। आराधना, Yes, देयर sir. इज प्रॉब्लम एट योर एंड, मे बी यू प्लीज रिकनेक्ट। आप लेफ्ट करके फिर से कनेक्ट कीजिए, आपको शो करेगा। यहाँ से ओके है, आई थिंक सब लोग को दिख रहा है। ओके, सो हु विल प्रियांशु, कैन यू आंसर, कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? प्रियांशु? प्रियांशु, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। सर आंसर नहीं बना, कोई बात नहीं। देखिए, अब आप लोग समझिएगा। पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखिए, आप रेफरेंस बुक में या सप्लीमेंट्री बुक में कोई भी बुक आप रखते हैं, आपके स्कूल में कोई भी बुक चलता है, ठीक है, लेकिन आपको एनसीईआरटी का सारा थ्योरी, सारा एक्टिविटी, ये चीज आप लोग निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका जो सीएससी एग्जाम होगा वो एनसीईआरटी के बेस पे होता है। आप जो कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे, कोई ओलंपियाड देंगे, साइंस ओलंपियाड देंगे, या आप किसी अच्छे स्कूल का, अच्छे यूनिवर्सिटी एग्जाम देंगे, बीएचयू वगैरह का, तो वहाँ पे जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन रहता है। तो आपको एनसीईआरटी का सारा थ्योरी, सारा एग्जाम्पल, सारा क्वेश्चन, सारा एक्टिविटी सब क्लियर होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, इसके बाद टाइम मिलता है तब आप सप्लीमेंट्री बुक जैसे कि लक्ष्मी सिंह का बुक है या एस सी वर्मा का बुक है, उसको आप फॉलो करेंगे। पहला आपका फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी, ये आपको 100% आ जाना चाहिए। यस, एम आई क्लियर? प्लीज कमेंट ऑल ऑफ यू। ओके। ओके रवि, शांतनु, प्रियांशु, वेरी गुड। Yeah. What about Sant and okay, Please. okay. So I'm coming to question number 6. See, a copper
The question is, copper wire has a diameter 0.5 mm and resistivity, भी resistivity भी दिया हुआ है, diameter भी दिया हुआ है. What will be the length of the wire to make the resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? देखिए इसमें दो क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर टू मेक रेजिस्टेंस 10 ओम. ये पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का. दूसरा पार्ट कर रहा है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल. डायमीटर को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना चेंज करेगा, दूसरा क्वेश्चन है. दोनों क्वेश्चन तो क्लियर है आप लोग को. तो हमने पढ़ा है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. एल यहाँ पे दिया है आप लोग को, सॉरी एल आपको निकालना है, रो दिया है और आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है. एक ये नहीं दिया है, एक जगह आपको डायमीटर दिया है 0.5 mm. अब देखिए सिंस ये डायमीटर दिया है मतलब कि जो वायर है, जनरली वायर कैसा होता है, वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है कैसा होता है शांतनु, वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है शांतनु? शांतनु, आई एम आस्किंग यू, वेटिंग फॉर योर आंसर. यस सर. मेरे 2 बार क्वेश्चन पूछने के बाद आप पूछ रहे हो यस सर. जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन. सर इसमें सर रिपीट कर. कहाँ ध्यान है आपका? मैंने बोला कि वायर का, जो वायर आपके घर में होता है जो देखते हो, वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, देखा है आपने वायर कभी? यस सर. कैसा होता है क्रॉस सेक्शन वायर का? क्रॉस सेक्शन मतलब सर. ओके, यस आई गुड. क्योंकि आपने आपका सेकंड क्लास ही है तो आपको नहीं पता है व्हाट इज क्रॉस सेक्शन. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्रॉस सेक्शन क्या होता है. ओके, सो आई हैव स्टॉप शेयरिंग एंड नो आई एम. मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ कि क्रॉस सेक्शन कैसा होता है वायर का. आप लोग देखिएगा यहाँ पर. 1 मिनट, थोड़ा सा कैमरा अरेंज कर लूँ यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ आपको. तो मेरा वीडियो अभी दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा होगा. तो इसको आपको, मेरे वीडियो को आपको पिन करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से दिखे. ये क्या पिन का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर? कैसे पिन होता है? जस्ट वेट, आई एम शोइंग यू. हाँ, पिन कैसे होता है रवि, कैसे पिन करते हैं? आप लोगों ने पिन कर दिया है ना? डबल क्लिक करने पे. यस सर. ओके, हाँ गॉट इट. ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू रवि. अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा. खास करके प्रियांशु, कैन यू टेल मी व्हाट इज क्रॉस सेक्शन? नहीं पता सर. ओके, देखिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्रॉस सेक्शन आज के बाद आपको हमेशा यूज आएगा. दिखेगा यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे हैं इसको? क्या है ये? यस सर. क्रीम. क्रीम है निविया का. देखिए यदि मैं इसको ऐसे दिखाऊं आपको, अब देखिए जो सामने का पार्ट दिख रहा है आपको, ये हो गया क्रॉस सेक्शन. कैसा है ये? सर्कल. सर्कल. सर्कुलर. वेरी गुड. अब देखिए ये क्या दिख रहा है आप लोग को? फोन. रेक्टेंगुलर. सर फोन. और ये जो सामने का दिख रहा है आप लोग को, ये जो दिख रहा है, ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट दिख रहा है, ये इसका हो गया क्रॉस सेक्शन. ठीक है. यस सर. तो शांतनु, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कैसा है इसका? सर रेक्टेंगुलर. वेरी गुड. ये बताइए ये क्या है? एक मार्कर है, मार्कर. और ये मार्कर का लेंथ हो गया, समझिएगा, ये उसका लेंथ हो गया. और ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन, ये वाला, ये पीछे वाला भी हो गया इसका क्रॉस सेक्शन. कैसा है क्रॉस सेक्शन? सर्कल. सर्कुलर. सर्कुलर है. तो वायर तो कुछ ऐसा ही होता है ना? सर वो. यस सर. यस सर. या इससे पतला होता है. सपोज कि ऐसा वायर होगा, इससे पतला होगा तो ऐसा वायर होगा. यस सर. इस पतले वायर का भी क्रॉस सेक्शन क्या होगा? सर्कुलर होगा ना? सर्कुलर होगा सर. इसीलिए आपको डायमीटर दिया हुआ है.
यदि सर्कुलर होता है और डायमीटर पता है तो सर्कल का रेडियस होता है पाई आर स्क्वायर। और यस आर को यदि आप लिखो, आर को यदि आप लिखोगे डायमीटर बाय 2 तो हो जाएगा वो पाई इंटू डायमीटर बाय 2 का स्क्वायर, यानी पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर बाय 4, पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर बाय 4। एम आई क्लियर? यस सर तो क्या हो गया, Yes. पाई डी स्क्वायर, डायमीटर को यदि मैं डी बोलता हूँ तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 जो हुआ वो हो गया आपको एरिया। So have you got the idea about cross section? Yes, sir. Yes, सर Priyanshu. I Yes, sir. want answer from. Okay, very good. So Yes. diameter is given here. तो आप यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं। आपको अब रो दिया हुआ है, आपने एरिया निकाल लिया है, और आपके पास आर दिया हुआ है। कैन यू फाइंड एल? यस प्रियांशु, Yes, कैन यू sir. फाइंड एल? नो? यस सर सब लोग जल्दी से पेपर और पेन लीजिए और निकाल के मुझे बताइए जल्दी से। आई एम गिविंग यू 2 मिनट टाइम। 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, और आप लोग निकाल के जल्दी से मुझे बताइए। तब तक मैं भी पेपर पेन लेकर निकाल लेता हूँ कितना आंसर आ रहा है, सो दैट आई कैन कंफर्म यू। ओके, सो आई एम टर्निंग ऑफ माई वीडियो। आप लोग निकालिए। ओके, योर टाइम इज अप नाउ। सो किसी का आंसर आया? No, sir. देखिए तो अब मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? नो सर यस सर दिख रहा है मैंने लिखा है यहाँ पे आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है, लिखा है ना? यहाँ देखिएगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाय होता है ना। Yes, sir. और ए क्या लिखा मैंने, पाई डी स्क्वायर बाय 4। डी यहाँ पे डायमीटर है, डायमीटर दिया है 0.5, लिख दिया मैंने पाई 0.5 स्क्वायर बाय 4। तो 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। नीचे में 4 पहले से है तो ये हो गया पाई अपॉन 16, ये हो गया पाई अपॉन 16। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, इज इक्वल टू रो का वैल्यू इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, इज इंटू एल अपॉन ए, रो एल बाय ए।
हमें एल निकालना है, तो क्या होगा, ये जो पाई बाय 16 है ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो गया, एल इक्वल टू 10 इंटू पाई बाय 16, और यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा, पाई बाय 16, और ये क्या होगा, ये डिवाइड होगा, नीचे में होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, आप बताइए, 10 इंटू पाई बाय 16, 10 10 इंटू पाई बाय 16, और नीचे में क्या है फिर 1.6, 1.6 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, ये बताइए। Yes, sir. शांतनु यस आप सर, यहाँ बताइए। तक क्लियर। यस सर, यहाँ ओके, तक क्लियर है। अब देखिए 10⁸ को आप ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा ना। Yes, sir. हाँ, तो पावर पॉजिटिव हो गया। जब पावर पॉजिटिव हो जाएगा यस सर। तो क्या करेंगे हम लोग, यदि पावर पॉजिटिव हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको 10 इंटू पाई क्या हो जाएगा, ये हमारा देखिए 10 इंटू पाई इंटू 10⁸ अपॉन में हो गया हमारा 16 इंटू 1.6, कितना है क्या, एल इक्वल टू 10 into pi multiply 10 to the power 8 upon 16 multiply 1.6. Yes, sir. Yes इसको sir. सॉल्व करके निकालेंगे, Yes, sir. Yes sir. ठीक है। तो यदि सॉल्व करके निकालेंगे इसको तो कितना आंसर आएगा, किसी ने निकाला है इसको, किसी ने इसको निकाला है, कितना आंसर आएगा। Sir, wait 2 minutes. ओके, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, एक मिनट रुकिए आप लोग, यहाँ पे जो रो का वैल्यू दिया है वो ओम मीटर में दिया है, ठीक है, Yes और sir. हम लोग मीटर यहाँ में। पे, हाँ हम लोग डायमीटर लिए हैं एमएम में, ये ध्यान रखना पड़ेगा, उसको भी करना पड़ेगा ओम एमएम में, उसको भी करना पड़ेगा ओम एमएम में। कैसे करेंगे ओम एमएम में, सर मैंने पहले ही कर दिया। हाँ ठीक है, आपने कर दिया तो ठीक है। मुझे ये सर बताइए, यहाँ प्रियांशु आप बताइए। आपने जो पाई का वैल्यू लिया वहाँ पे 3.14 भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे, वो तो पैक का वैल्यू ही होता है। मुझे ये बताइए, मैं प्रियांशु से पूछ रहा हूँ, प्रियांशु इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ओम मीटर को ओम एमएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। प्रियांशु, सर पता नहीं सर। कोई बताएंगे इसको, रवि आप बताएंगे। सर बाई 1000। रवि से मैं पूछ रहा हूँ, रवि आप, सर हम बता सकते हैं। रवि बोला नो, आराधना बोल रही है, ठीक है। हाँ आप बताइए, शांतनु आप बताइए। सर डिवाइड करेंगे सर 1000 से। बेटे यदि मीटर को एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, सर मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिवाइड क्यों बोला आपने। देखिए यहाँ देखिए, आपको दिख रहा है ये मेरा स्क्रीन आप लोग को, नो सर। मैं फिर से करता हूँ। मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ स्क्रीन को, देखिए आप लोग, दिखाता हूँ मैं कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। अभी दिख रहा है क्या। यस सर। देखिए मैंने लिखा है ना, रो इज इक्वल टू 1.6 × 8 ओम मीटर है, और 1 मीटर में 1000 mm होता है, मतलब 10⁻³ mm होता है, तो वो लिखा है मैंने 10⁻³ mm, और 10⁻³ और 10⁻⁻8 हो गया 10⁻⁻5, ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻5 ओम mm। यस प्रियांशु, ये क्लियर हुआ। यस सर। रवि एंड संत,
ओके, क्लियर है। तो रो का वैल्यू आप ये पुट करेंगे, ना कि 10⁻⁻8 पुट करेंगे। तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे केवल इतना डिफरेंस होगा, जहाँ पे 8 था वहाँ पे 8 नहीं करके हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे -5, और यहाँ पे कर देंगे -5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब आपका आंसर निकल जाएगा। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 इंटू 3.14 इंटू 10⁻5 अपॉन में 16 इंटू 1.6। यस, यस सर। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके आप मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है सब लोग। 122.7। आप बोल रहे हैं 122.7 आ रहा है। यस सर। तो ये तो हुआ ना। सर मीटर। मीटर। आपने कन्वर्ट कर दिया मीटर को में, को मीटर में। यस सर। ओके, कन्वर्ट करने के बाद इतना मीटर आ रहा है। ठीक है, मतलब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आया होगा ये 122.700 ये सर ये यस mm सर। है। उसमें 1000 से भाग कर दिए थे, हमारा मीटर आ गया। यस सर। ये हमारा आंसर हो गया, है ना। यस सर। यस प्रियांशु, आया आपका। यस सर, आ गया। रवि का आया, रवि सर एंड संत। ओके, ठीक है, यदि आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो यस आप लोग सर, आ इसको, गया। नहीं आया तो आप लोग इसको कर लेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं अभी अपने मोबाइल में। सर मैं बहुत दिखा रहा हूँ छोटा पूरा दिख स्क्रीन। रहा है। ओ तो ठीक है, मैं इसको इसका तो फोटो लेकर फोन ग्रुप में को भेज दूंगा। टिल्टेड कर दीजिए ना, पूरा ही कवर कर लेगा। ऐसे कर दे फोन को। अब ठीक है क्या। नहीं यस। सर, फिर भी छोटा दिख रहा है। नहीं तो मैं इसका फोटो लेकर मैं भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। सर आप ना जैम्बो यूज कीजिए, जो फोन में ही आता है बोर्ड। हाँ, मैंने पेन टाइम मंगा लिया, मैं वो यूज करूंगा। एक्चुअली मैं अभी इसको इंस्टॉल नहीं किया था पूरा प्रॉपर, और मैं पटना चला गया था, ये सर तो मैं उसको ग्रुप में डाल दीजिए। वो डाल दूँ। सर 7 में भी प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, 7 में प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व करके भेजूंगा ग्रुप पे। ठीक है, तो आप लोग आगे बनाइए। कहीं प्रॉब्लम है तो आपको रुकना नहीं है, कैसा नहीं कि 7 में प्रॉब्लम है तो हम 8 9 10 नहीं बनाएंगे। आप आगे बनाएंगे, जिससे प्रॉब्लम है प्रयास कीजिए, 1 2 बार, और नहीं बन रहा है आप आगे बढ़ जाइए। ठीक यस है, सर, बनाया इधर। हाँ, बनाते जाना। आपको आपको एंड तक प्रयास करना है। कितने क्वेश्चन है टोटल, क्वेश्चन 18 है ना। यस आपको सर। 18 तक यस पहुंचना है। सर। ठीक है, बीच में जो नहीं बनता है उसको आप छोड़ सकते हैं, दोबारा फिर ट्राई कर सकते हैं, और फिर भी नहीं बनता है तो क्लास में डिस्कस करेंगे उसको कल। ओके ठीक सर। है, ओके सर। ठीक है, फिर आज टाइम 8 से अधिक हो गया है, तो फिर हम लोग मिलते हैं फिर कल। टिल ओके देन, सर, थैंक यू टेक सर। केयर, ओके सर, टेक थैंक केयर यू ऑल ऑफ सर। यू। ओके, बाय बाय, थैंक यू। बाय। सर चाहिए हाँ सर। बोलिए बोलिए, ये शांतनु। रुकिए सर।